Okay, let's start this lecture again. हम कहाँ पहुँचे थे इसमें मॉर्फिज्म हम डिफाइन करे थे. ओके, so suppose now we define morphism. Okay, morphism in systems. Morphism. So let's suppose we have two left-S systems. Let XS and YS be left S systems. A map phi from XS to YS is called morphism. Is called a morphism, or you can say system morphism. Okay, if left S, okay, Sx of phi is equal to S of x phi. Okay, ये S बाहर जाता है, जैसे वहां पर होता है ना वेक्टर स्पेस में f ऑफ अल्फा x इक्वल टू अल्फा टाइम्स f ऑफ x, यहाँ पर भी वही होता है. अब मैं यहाँ पर पहले एलिमेंट लिखता हूँ फिर मैप लिखता हूँ, तो S बाहर आ जाएगा ऐसे. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फिज्म. Okay, yeah. So next we have one more example of system. Okay, so आपको खुद देखना है this Tx. अगर आपके पास x नॉन एम्प्टी सेट है, if x a non empty set and this Tx it's a semi group, S is equal to Tx, then this x is left S system over this S. ये आप देखोगे हैं, it's at page number 254. इसको आप देख लेना. तो इसके बाद अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पर आ जाएंगे. अगर आपके पास दो सिस्टम्स होगी, वन इज राइट एंड द सेकंड लेफ्ट एस सिस्टम, so we define the system on the cross product. System on cross product. So let x be left S system, be left S system, and y be right T system. Okay, y be right T system. Then x cross y is ST by system. And then their Cartesian product x cross y is ST by system. Means it's both left S and right T system, where the action is defined by where the action is defined by what's your action. So it's left S system, S times x comma y, where x comma y is an ordered pair in x cross y. It's equal to SXY. ये वेल डिफाइंड है क्योंकि x लेफ्ट एस सिस्टम है, तो ये SX वेल डिफाइंड, इट इज एन एलिमेंट ऑफ x, सो इट बिलोंग्स टू x क्रॉस. लेट मी and we define the right action x comma y t is equal to x comma y t. Okay, for all x belongs to x, y belongs to y, this S comma T belongs to S belongs to S and T belongs to T. S belongs to S and T belongs to T. So you can easily verify this action. This action will define this will be the left S system, x cross y. Okay, this is an element of x cross y. You can easily verify it. It is also right T system by using this action, and you have to
verify only one property, that's S times xy of t is equal to S of xyt. ये आपको चेक करिए, ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू वेरीफाई. ओके, so this x cross y is st by system. X cross y is st by system. Next, we define a by map. We define a by map. Okay, let's define this by map. Suppose this A is STS by system, B is SU by system. Let A be TU by system, TU by system, and let's not and here because we have 3 by systems here. B it's your B is it's A is TS, sorry, A is TS by system, A is TS by system, A is TS by system, and B let B be your B is SU by system, SU by system, and this C B it's TS, it is SU, so your T is TU by system. So you have 3 by systems, 3 by systems. Okay, C is it's TU by system. Now at TU map, हमने TU map को डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ लेफ्ट एस मैप को डिफाइन किया है. So at T, वो मैं आगे डिफाइन करूँ. At TU map, at TU map, TU map means it's a morphism actually, which preserves the left T action and the right U action actually. At TU map, beta from A cross B. What's this A cross B? This A is left T system because it is by system, T is by system, so that means A is left T system. Okay, and B is right U system, that means A cross B will be TU by system, जो मैंने पहले डिफाइन किया लास्ट प्रीवियस पेज पर. If X is left, अगर आपके पास X लेफ्ट T सिस्टम होगा और Y होगा राइट U सिस्टम, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो होगा TU बाय सिस्टम. तो यहाँ पर A क्या है? A है लेफ्ट T सिस्टम, B है राइट U सिस्टम. It means that A cross B is TU system, TU by system. So this A cross B is actually TU by system. So you define a map this beta from A cross B to C because C is also TU by system. A TU map beta from A cross B to C is called a by map is called a by map if is called a by map if AS of B, AS comma B of beta, image of this is equal to A comma SB of beta, where A and B, sorry, A is in A belongs to A, B is in B, and this S is in S. मैं फिर से प्रीवियस पेज पर आ जाऊंगा. अब B क्या है? B है लेफ्ट एस सिस्टम और A है राइट एस सिस्टम. ओके, A है राइट एस सिस्टम. तो A में क्या होगा? A के एलिमेंट्स के साथ जो S होगा ना वो राइट साइड होगा, और B के एलिमेंट्स के साथ जो S होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि B लेफ्ट एस सिस्टम है. और वही मैंने यहाँ पर लिखा है AS. अब
ए का एलिमेंट है तो एस राइट साइड होना चाहिए, तब जाके ये वेल डिफाइंड होगा। और यहाँ से मैंने एस बी लिया क्योंकि बी का एलिमेंट है, तो इसका जो एस होगा ना, क्योंकि ये जो बी कैपिटल बी है ना वो लेफ्ट लेफ्ट एस सिस्टम में, तो एस लेफ्ट साइड होना चाहिए। और इस मैप को कहेंगे हम हमने लिया है ना लेफ्ट एस सिस्टम, लेफ्ट टी सिस्टम, पर वो है ना राइट एस सिस्टम भी, ए है ना राइट एस सिस्टम भी। यहाँ पर देखिए आप, ए इज राइट एस सिस्टम ऑल्सो, तो वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब मैंने टी यू मैप को मैंने डिफाइन नहीं किया, वो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। टी यू मैप किसको कहते हैं? सपोज आपके पास दो सिस्टम्स है एक्स, जैसे आपके पास मैंने भी किया लेफ्ट एस सिस्टम आपके पास है और दूसरा भी लेफ्ट एस सिस्टम है। फिर मैंने मैप को डिफाइन किया 5 फ्रॉम एक्स एस टू वाई एस। इसको मैं कहूँगा ये मॉर्फिज्म है या एस मॉर्फिज्म है, इसको कहता हूँ एस मॉर्फिज्म, एक्चुअली इसका नाम है एस मॉर्फिज्म। if s x of phi is equal to s times x phi। अब इसमें क्या होगा, अब आपके पास सपोज बाई सिस्टम है, x सपोज बाई सिस्टम है, x है बाई सिस्टम, ये है लेफ्ट एस सिस्टम भी और राइट टी सिस्टम भी। s मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया, t मैंने राइट साइड लिख दिया। इसका मतलब क्या है, x है एस टी बाई सिस्टम और y भी है एस टी बाई सिस्टम। अब मैं इस मैप को कहूंगा, ये दोनों एस टी बाई सिस्टम है, इस फाइल को मैं कहूंगा एस टी मैप इज एस टी मैप। जैसे यहाँ पर एस मॉर्फिज्म है, यहाँ पर अब मैं कहूंगा एस टी मैप है, ये एस टी मैप, और यू कैन से एस टी मॉर्फिज्म, एस टी मैप इफ विथ इट शुड सैटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी एस एक्स, क्योंकि एस लेफ्ट साइड में एस एक्स ऑफ फाई इज इक्वल टू, ये मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, एस x of phi is equal to s times x phi। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, x t of phi is equal to x phi of t, t राइट साइड में, और ये बाहर आना चाहिए। तो मतलब दोनों राइट लेफ्ट प्रॉपर्टी भी इसके पास हो, लेफ्ट एक्शन भी ये प्रिजर्व करना चाहिए और राइट एक्शन भी ये प्रिजर्व करना चाहिए। इस केस में इसको कहेंगे एस टी मैप, ये एस के एक्शन को भी प्रिजर्व कर रहा है और टी के एक्शन को भी। फ्रीज हो गया है, ये आगे चल रहा है। यस, फ्रीज हो गया। नेक्स्ट पेज आया ही नहीं। नेक्स्ट पेज आया नहीं है आपके पास? हमें नहीं आया। ये पेज आपके पास आ रहा है? जो प्रीवियस पेज मैंने लिया है वो आ रहा है आपके पास? नो सर भाई मैं प्रीवियस पेज वहीं पे है। प्रीवियस पेज वहीं पे रिकॉर्डिंग का नीचे दिखा रहा है ना, टाइमिंग वो है। नेटवर्क प्रॉब्लम हुई। 1 मिनट। What is the problem? Your screen sharing is paused। इसको क्या होगा? Your screen sharing is paused। एक मिनट में जरा इस पे आ जाता हूँ। Why it's paused? क्या pause गमस? ये मैं चीज़ करूँ शेयर? Yes। Is paused। अब आ गया नेक्स्ट पेज? नहीं। नो सर। तो ये कैसे पॉज हुआ? मैं इसे ट्राई कीजिए। हाँ मैं इसे ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। अब आ गया? यस सर। ओके। तो ये दो प्रॉपर्टीज इसकी होनी चाहिए, तब इसको हम कहेंगे एस टी मैप। तो वहां पर मैंने, अब इसका प्रीवियस पेज आ जाएगा जैसे, तो मैंने कहा ये जो है ना आपके पास, ये दो सिस्टम, ए तो आपके पास है ये ए क्रॉस बी, दूसरा आपके पास है सी। ए क्रॉस बी भी क्या है, ये भी टी यू बाई सिस्टम है और सी भी टी यू बाई सिस्टम है, ठीक है। अब मैं इनके दरमियान मैप डिफाइन कर सकता हूं जो कि क्या हो, टी यू मैप। टी यू मैप मीन्स इट शुड प्रिजर्व
this left T action as well as right U action. तो वो ये जो मैप है ना बीटा, ये है टी यू मैप पहले. इस टी यू मैप को हम कब बाई मैप कहेंगे? अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इस वाली प्रॉपर्टी को, ए एस बी ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए टाइम्स एस बी ऑफ बीटा. तो ये आ गया बाई मैप का कंसेप्ट, ये है. ओके, इसको हम कहेंगे ये बाई मैप है. अब इसके बाद हम टेंसर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे. टेंसर प्रोडक्ट खाली टी यू मैप होने के लिए मतलब ये टी का ये एक्शन से ये प्रिजर्व करना चाहिए और यू का एक्शन प्रिजर्व, और यू का भी, यस, दोनों एक्शन प्रिजर्व. अगर आप कहोगे सिर्फ टी मैप तो टी का एक्शन प्रिजर्व करना, या अगर आप कहोगे सिर्फ एस मैप तो एस का एक्शन प्रिजर्व करना चाहिए. तो ये डिपेंड कर रहा है आप कौन सा मैप ले रहे हो. टेंसर प्रोडक्ट. टेंसर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? सपोज we have two systems, and your A is here as TS by system, B is also SU by system, जो ऊपर आपने लिया है. let A be TS by system, TS by system, TS by system, and B it's B is SU by system, SU by system. Okay, let A be TS by system and B be an SU by system. ओके, आपके पास दो बाई सिस्टम्स, एक तो TS है, दूसरा है SU. अब टेंसर प्रोडक्ट किसको कहेंगे? A और B का टेंसर प्रोडक्ट क्या होगा? appear P comma psi consisting of TU by system P. This P is TU by system. TU by system P. TU by system P. And TU by system P and a bimap, and a size of bimap, and a bimap psi from A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B है ना TU सिस्टम, एक्चुअली TU बाय सिस्टम, A क्रॉस B to P. तो इसमें दो चीजें हैं. टेंसर प्रोडक्ट is appear this consisting of TU by system P and a bimap psi from A cross B to P. A cross B to P will be called a tensor product. इस पेयर को हम कहेंगे ये टेंसर प्रोडक्ट है. will be called a tensor product. Tensor product of A and B if, अब इसकी वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हुई. यूनिवर्सल प्रॉपर्टी मीन्स अगर आपके पास कोई और एक पेयर होगी, से C कामा phi सपोज, such that phi is a map from A cross B to C, तो इस P से उस C तक एक मैप एग्जिस्ट होनी चाहिए, ताकि वो जो ट्राइंगल होगा ना, ट्राइंगुलर डायग्राम, वो कम्यूट होगा. दैट मीन्स if for every TU, if for every TU by system, TU अगर कोई भी बाई सिस्टम होगा आपके पास, TU बाई सिस्टम से C और कोई भी बाई मैप होगी, एंड एवरी बाई मैप बीटा
फ्रॉम ए क्रॉस बी टू सी, मतलब ये जो P आपने ऑलरेडी लिया ना, यहाँ पर आपने ऑलरेडी मैप ली है। अगर इस P की जगह पर, ये P को हम कब कहेंगे टेंसर प्रोडक्ट, अगर P की जगह पर कोई और आपके पास C(x2) होगा जिसकी यही प्रॉपर्टी होगी, आपके पास बाय मैप भी होगा A क्रॉस B से लेकर C तक, तो फिर क्या मिलना चाहिए हमें, बाय मैप बीटा फ्रॉम A क्रॉस B टू C, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक, देयर एग्जिस्ट्स a unique, there exists a unique TU, there exists a unique TU map say beta bar from P to that C such that the diagram commutes, which diagram is this diagram। तो यहाँ पर आपके पास है A क्रॉस B से दो मैप्स जा रही है, एक तो जो टेंसर प्रोडक्ट की मैप है दैट्स साई, दूसरी वो P तक जा रही है, और दूसरी मैप क्या है आपके पास जो आपने बीटा लिया। अगर कोई और मैप होगी और अगर कोई और पेयर आपके पास होगी जिसकी यही प्रॉपर्टी है जो P और साई की प्रॉपर्टी है, तब P और P से C तक मैप मिलनी चाहिए, दैट्स बीटा बार, such that this diagram commutes means psi composition beta bar is equal to this diagram commutes, that is psi beta bar is equal to beta। तो ये है डेफिनेशन किसकी, टेंसर प्रोडक्ट की। और इसके बाद हमें प्रूव करना ये जो टेंसर प्रोडक्ट है ना ये यूनिकली एग्जिस्ट हो रहा है। अगर ये एग्जिस्ट होगा, पहले तो इसकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इफ इट एग्जिस्ट्स यूनिकली। So I will leave that as an exercise for you. If the tensor product of A and B exists, then it's unique. Then show that it is unique. It's unique. It is unique up to isomorphism. मतलब अगर आपके पास दो टेंसर प्रोडक्ट्स हैं तो इनके दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होनी चाहिए। इसका प्रूफ सिंपल है, आप इसको देख सकते हो, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। तो इसके बाद एक्चुअली आपके पास अब है एग्जिस्टेंस ऑफ टेंसर, क्या टेंसर प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो रहा, अगर होगा एग्जिस्ट तो वही सिर्फ टेंसर प्रोडक्ट आपके पास हो, क्योंकि आपने अभी इसमें प्रूव किया है कि टेंसर प्रोडक्ट इफ इट एग्जिस्ट्स यूनिकली। तो अब इसकी एक्चुअली एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ टेंसर प्रोडक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ टेंसर प्रोडक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ टेंसर प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, आप फिर आपके पास यही है, ए है TS बाई सिस्टम और B है SU बाई सिस्टम, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब इनका टेंसर प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना है, और वो टेंसर प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं अगर आपके पास A और B या सिस्टम से बाई सिस्टम से, ये है TS बाई सिस्टम और ये है SU बाई सिस्टम। तो इनका जो टेंसर प्रोडक्ट है वो मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, it's A टेंसर B, इट्स कॉल्ड A टेंसर B ओवर S। अब S में क्यों ले रहा हूँ, इसका रीजन है, इसका रीजन मैं नीचे बता दूंगा मैंने SC क्यों लिया है। इट्स एक्चुअली फ्रॉम TS देन SU, तो S एक्चुअली बीच में है तो वो इस वजह से मैंने, और इसका और एक रीजन है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ये टेंसर प्रोडक्ट क्या होगा वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स डिफाइन दिस रिलेशन, लेट्स डिफाइन अ रिलेशन ऑन define a relation, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए define a relation on A क्रॉस B by A क्रॉस B पर आप रिलेशन डिफाइन करो, T इक्वल, इसमें कौन सी पेयर्स आप लोगे, क्योंकि इसमें जो पेयर्स होगी ना उनकी एंट्रीज वो खुद पेयर होगी, क्योंकि रिलेशन आपने ऑर्डर दिस क्रॉस प्रोडक्ट पर डिफाइन किया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पर आपने रिलेशन डिफाइन, मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट के दो एलिमेंट्स आपको रिलेट करने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के दो एलिमेंट्स।
तो वो दोनों एलिमेंट्स इटसेल्फ क्या होगी, वो ऑर्डर्ड पेयर्स होगी। तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होगी टी में, इट्स ए एस कामा बी एंड ए कामा एस बी, where A belongs to A, B belongs to B and S belongs to S। ये आपके पास रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन। और अब इस रिलेशन से जो कॉन्ग्रुएंस जनरेट होगी उसको आप डिनोट करोगे किस तरह से, विल डिनोट दैट कॉन्ग्रुएंस बाय टाउ, not equivalence, let tau be an equivalence। ये आपने किया है पहले यूनिट में। अगर आपके पास कोई भी रिलेशन R होगी, यू कैन डिफाइन द इक्विवेलेंस जनरेटेड बाय R, दैट्स डिनोटेड बाय RE, equivalence। let tau be an equivalence generated by it's a unique actually, so tau be the equivalence generated by this relation T। ओके, तो इसके बाद आप we denote this, अब मैं इसका फैक्टर लूंगा, A क्रॉस B का फैक्टर with the help of tau, because tau is an equivalence relation and I will take the all equivalence classes of A cross B। So let's denote let's define this one, A tensor S, A tensor B over S is equal to A cross B divided by tau। So it's actually the set of all equivalence classes with respect to the relation tau which is on A cross B, set of all equivalence classes, and the equivalence class of A comma B is denoted by and the equivalence class of A comma B is denoted by आपके पास ये है equivalence class of A comma B of tau, it is denoted by A tensor B। okay, so this is the equivalence class of A comma B with respect to the relation tau। तो A क्रॉस B और tau जो आपने लिया है ना, उसमें इसी टाइप के एलिमेंट्स है, A टेंसर B टाइप के एलिमेंट्स उसमें है। और जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन जो आप प्रूव करोगे, आप यहाँ पर एक रिमार्क आप लिख सकते हो। रिमार्क ये है, अब क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास ये है, आपके पास A S कामा B, ये जो पेयर आपके पास है A टाइम्स S B, ये T में है ना, इट्स इन T, और T से जो इक्विवेलेंस जनरेट हो रही है वो टाउ है। इसका मतलब टाउ इस T को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो ऑर्डर पेयर है, ये टाउ में है, दैट मीन्स दे आर टाउ रिलेटेड। सो विच मीन्स दैट A S कामा B इज टाउ रिलेटेड टू A कामा S B। और टाउ क्या है, टाउ इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये दो एलिमेंट्स आपस में टाउ रिलेटेड। इसका मतलब है कि इनके टाउ क्लासेस इक्वल होगी, so that means AS comma B tau class is same as A comma SB tau। इनके टाउ क्लास सेम, मगर इनके टाउ क्लास किससे डिनोट करते हैं? A comma B का टाउ क्लास हमने A टेंसर B से डिनोट किया, तो AS comma B का टाउ क्लास क्या होगा? AS टेंसर B, इट्स सेम एज A टेंसर SB। For all A belongs to A, B belongs to B and S belongs to S। तो इसके पास जो थ्योरम है आपके पास, आप प्रूव करोगे ये टेंसर प्रोडक्ट है। ये जो पेयर है ना, A टेंसर B कामा ये जो टाउ नेचुरल मैप आप डिफाइन करोगे, टाउ नेचुरल इज अ मैप। ये जो पेयर आपके पास है, ये टेंसर प्रोडक्ट है A कामा B का, ये आप प्रूव करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। व्हाट इज दिस टाउ नेचुरल? टाउ नेचुरल इज अ मैप फ्रॉम A क्रॉस B टू इट्स फैक्टर A क्रॉस B और टाउ। नेचुरल मैप जो आपने लिया ऑलरेडी डिफाइन किया, A क्रॉस B ओवर टाउ, which is actually this A क्रॉस B ओवर टाउ इज एक्चुअली A टेंसर B जो हमने
नोटेशन हमने जो यूज की है। तो वही तो आपको मिलनी चाहिए ना, द पीयर, दिस शुड बी ST, दिस शुड बी TU बाई सिस्टम। पहले TU बाई सिस्टम होना चाहिए, फिर जो टाउ नेचुरल मैप है ये होनी चाहिए 1/B से लेकर इस तक, ठीक है। और फिर अगर कोई और मैप आपको मिलेगी, कोई और बाई सिस्टम आपको मिलेगा, तब इस बाई सिस्टम से जो यहाँ पर है इससे लेकर वहां तक आपको एक मैप मिलनी चाहिए, सच दैट दिस डायग्राम विल कम्यूट, ट्राइंगुलर डायग्राम विल कम्यूट। उस केस में अगर आप वो प्रूव कर पाओगे, सो देन दिस विल बी द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, और उसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रपोजिशन प्रूव करनी है, उसके बाद हम इसको प्रूव कर सकते हैं ये टेंसर प्रोडक्ट है A और B का। दैट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन है? यस हेलो। हाँ हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था आपको, ये जहाँ आपने वो प्रोडक्ट डिफाइन किया है ना आपकी एक वीडियो सर, उस पे हम इनफाइनाइट वो प्रोडक्ट लेते हैं सेमी ग्रुप्स का। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप आ जाए ना इस लेक्चर पर। वो तो पहले की, वो तो फर्स्ट लेक्चर की बात है, पहले जो यूनिट है ना उनके लेक्चर्स में आ रहा है। आप मुझे बताइए इस लेक्चर में कहाँ पर कंफ्यूजन है? वो आप अलग से डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल जो हमने ये लेक्चर अभी दिया ना, इसमें कहाँ पर कंफ्यूजन है, या कल जो लेक्चर है उसमें कहाँ पर कंफ्यूजन, क्योंकि हम इस टाइम इस बैलेंस ज़िगज़ैग थ्योरम करें, हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। हाँ बताइए। ये हमने A+B पर ही रिलेशन डिफाइन किया है, और इससे हमने इक्विवेलेंस जनरेट किया जो हमने यूनिट 1 में किया है। इक्विवेलेंस जनरेटेड बाय एनी रिलेशन R विच इज डिनोटेड बाय RE, अगर आप को याद होगा फर्स्ट यूनिट। और ये तो आपको करना है खुद, इसको आप देख सकते हो। ये है टेंसर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। हाँ बताइए। तो हम मीटिंग को क्लोज करें फिर? यस सर। चलिए ठीक, इसको आप देख लीजिए फिर से, या